doing this. Yes. ठीक है. Go ahead, Ajay ji. Okay, sir. Okay, guys. Good morning or good evening or good night. I don't know what is the time zone in different places. So after a long time we are meeting. I will not take more time because I know it's Friday and everybody have their own plan. Even though there was lot of uneasiness in the group or something, everybody is asking what is happening, what is not happening. Myself and Manish, guys, Prakash, could you please just be, Sunil sir, is it be possible to mute everybody? Otherwise that will also be a... I am doing that right away. Give me a minute. Let me see. But I don't want to mute you. नहीं आप एक this minute. will... I think everybody is muted except you and me, which you can go ahead. Okay. So we meet multiple... Mute all. Yes. Okay, Ajay, you will have to now unmute yourself. Done, sir. Okay. Okay. So myself and Manish visit multiple time to Pawan Shri initially and to Lahoti also. But unfortunate, I think everybody is aware. It's nothing to be share or just update. The reason was a problem in last 2.5 years. There was around 12 hearings in Supreme Court. And in any of the hearing, they didn't hear to home buyers. कोई hearing उन्होंने home buyers पे नहीं की थी. Because most of the time they discuss with, there is one lawyer, government lawyer, Venkat Raman, who was looking from the Unitech side. So they was just hearing to Unitech, management, government, all those people. So they didn't hear anyone from the home buyers. Only in the last hearing, they talk about the home buyers and they are expecting to hear in the next hearing. Initially, that was planned on 28th of September. Now they move it, they just move it, I think 13th of October. And still they're saying that it's not confirmed. They may move it further or otherwise they will hear on 13th of October. So question was that, okay, what should we do? Because we continuously asking that. So one thing is very clear. When I had a very detailed discussion, almost like 1.5 hours, myself and Manish with Pawan Shri. So he told, okay, guys, you stick on your refund because any time to movement to the possession can be happen because ultimately they don't have money. They need money. It's not going to be happen if like they will get some money from government or some bank or something. Ultimately, they have to come to you only. Then I think Manish, I think Monday we discussed with finally we got a time from Lahoti and a detailed discussion happened. And I just want to be share what was the discussion there. So first point from Lahoti was very clear that guys, we are not going to, if the possession is happening, that will be the only option. Because if you are looking for, you can stick to the refund, but keep in your mind, when the refund will happen, nobody knows. When the possession will happen, that also nobody knows, right? But refund when will happen, nobody knows right now. But one thing is confirmed, that forget about any interest at this stage. No interest will be forcing, right? They will not pay a single penny for the interest. कोई ब्याज बटे का कोई पैसा आपको नहीं मिलेगा. So then we discuss about कि भाई बहुत लोगों ने medical reason है and age है, that also it's approved. So that he also confirmed. He cannot give the order, but he confirmed based on a discussion with judges or Venkat Ramani, who is looking the Amrapali case. So he confirmed that Ajay, even for those people also, forget about any interest.
and we are not very sure how much money they will get it, right? It's not very sure they will get the complete principal. And he given me the example that Ajay, there are 2 or 3 cases like in Amrapali also, on a medical ground, I think 5 or 6 people only just ask the money on the medical ground. In our cases, I think in Unitech, there is a list of almost 600 plus. But Amrapali mein there was only 6 and they given only, I think 20 or 30% to them. One case. One case तो अभी अटका हुआ है मनीष, वो the lady को तो दिया ही नहीं है, right? And because one case is pending, maybe they will hear in the next hearing कि वो lady मांग रही है, she is having I think 65 lakh, Manish, 65 or 80 lakh, उसका refund बनता है. She gave 80 lakhs and what she is demanding is 16 lakhs on account of the cancer treatment. हाँ, तो उसने 80 lakhs उसका है, she already there as a principal, forget about the interest. 80 lakh उसका है and she just asking to the court कि just give me 16 lakh for my cancer treatment. वो भी court अभी नहीं सुन रही है उसको, right? So that is the story. Then we say, okay, what is the next course of action? So next course of action, Lahoti suggests he is going to submit, because there is a problem in our project, guys, which they didn't discuss during that meeting. Whatever the plan is there from the Supreme Court and their leaders, whatever, like management, first they will finish, they will start the project which are all already like 70% more, like already constructed 70% or more. Then they will pick up the project which are greater than 40% or so. Then they will pick up the 20% or so. So I told him our project is not even 5%. क्योंकि एक ही टावर था, उसके भी वो सब खत्म हो गया है उसके, because I'm living there only every day. तो उसने बोला बॉस फिर अभी तो आपका स्टार्ट नहीं हो रहा है. So then we say what will be you do in that case? तो उसमें उसका था कि मैं, if you want, I can submit a affidavit on behalf of all residencies cases कि भाई for these resident either you prioritize it, तो आप इसे prioritize कीजिए because as per your plan it's going into the third category or something. Either इसको prioritize कीजिए आप पहले से, or if you allowed them, just move them to some other project which are already 80% or so or going to be complete in next 1 year, 9 months to 1 year. So please just allow that. तो हमने बोला ठीक है, ये एक वर्किंग सॉल्यूशन है, आप एफिडेविट तो लगाइए, लेट कोर्ट हियर अस एंड गिव द डायरेक्शन. वो क्या कहती है, क्या कोर्ट हमें अलाउड करती है या कोर्ट कहती है ठीक है आप अपना रिफंड लीजिए, ये जो भी है. तो इसीलिए हमने कॉल रखा आपको बताने के लिए. सुनील सर ने एक उस पे गूगल ग्रुप पे एक वो भी बनाया है, उसमें भरने का ऑब्जेक्टिव यही था कि क्या आप को यदि ऑप्शन मिले मूवमेंट का, क्या आप मूवमेंट करना चाहेंगे, और यदि आप मूवमेंट करना चाहेंगे तो किस प्रोजेक्ट में चाहेंगे. आई थिंक कुछ लोगों ने उसमें ऑलरेडी डाटा फिलअप भी करना शुरू कर दिया था, तो इसलिए मैंने बोला था भाई रुक जाओ, कॉल के बाद कर लेना. तो उसमें सिर्फ 2 ही चीजें थी, कंफर्मेशन है कि आप चाहेंगे तो किस प्रोजेक्ट में चाहेंगे. वो कहीं का भी हो सकता है, यूनिटेक में जो भी लिस्ट में जितने भी प्रोजेक्ट, कहीं का भी आप प्रोजेक्ट उसमें चूज कर सकते हो जो उनके प्लान में है, जो रिवीजन प्लान और जो उन्होंने यूनिटेक मैनेजमेंट ने सबमिट किया है. तो दैट्स इट ओवरऑल. ये डाटा आप हमें वीकेंड तक बना दो दोस्तों, बाय मंडे, क्योंकि ट्यूसडे को मैं और मनीष जाएंगे उससे टाइम लेकर के, उसको हम अपना वो बता देंगे, उसके बेस पे वो एफिडेविट जमा कर देगा, और एफिडेविट जमा होने के बाद कोर्ट में जब भी तारीख लगेगी, यदि 13th को सुनवाई होती है तो एफिडेविट सुना जाएगा, हमारी पॉइंट को सुना जाएगा. जी थोड़ा सा यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि व्हेन यू आर सेइंग कौन सा प्रोजेक्ट, बहुत सारे लोगों को लिस्ट ऑफ, फॉर एग्जांपल मेरे पास भी लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स नहीं है, मुझे पता भी नहीं है, इसलिए मैंने प्रोजेक्ट नेम वाला जो फील्ड था वो मैंने ऑप्शनल छोड़ दिया, मैंडेटरी नहीं करा उसको.
नहीं सर, उसको मैंडेटरी रहने दीजिए, यदि है भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अगर एक मिनट, अगर वो मैंडेटरी है देन somebody has to fill in something because वो ब्लैंक नहीं एक्सेप्ट करेगा फिर। अच्छा, तो फिर रहने दीजिए ना उसको, मैं उसको इसीलिए ऑप्शनल option छोड़िए। छोड़ा हाँ है, मतलब आप हाँ उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, उसको छोड़ दीजिए। और रहा सवाल जो उनका रिवाइव प्लान है, आपने मेरे से बोला भी था, बस मैं सॉरी दिन में हम कुछ और लगे हुए थे दोनों, आज भी हम कहीं बाहर ही थे। अच्छा, हाँ, तो ये रेजुलेशन फ्रेमवर्क है 237 पेज का। अगले 2 मिनट में, नॉट इवन 2 मिनट, बस 1 सेकंड दीजिए। यूनिटेक रेजिडेंसीज सेंड। गाइज, मैंने एक 237 पेज का रेजुलेशन प्लान अपने ग्रुप पे अपलोड कर दिया है, जो भी हमारा ग्रुप है उसमें आप देख लीजिए। उसमें यदि आप जाएंगे पेज नंबर 24 ऑनवर्ड्स, उसमें आपको सारे प्रोजेक्ट दिखाई दे जाएंगे। 23 ऑनवर्ड्स, सॉरी, पेज 23 ऑनवर्ड्स, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, कॉलम नंबर मतलब जो हेडिंग नंबर है 2.2.2, वहां से आपको सारे प्रोजेक्ट दिखाई दे जाएंगे। तो उसमें आप ओनली वो प्रोजेक्ट ले सकते हैं जहां पे टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड में डिफरेंस है। ऐसा नहीं है, जैसे मैं उसमें यदि मैं पढ़ रहा हूं, पहला प्रोजेक्ट है आनंदा जो चेन्नई का है, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, उसमें टोटल नंबर ऑफ यूनिट 504 है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड भी 504 है, तो उसको तो आप ले ही नहीं सकते, राइट? उसमें उसमें कोई फायदा ही नहीं है, वो मानेंगे नहीं। तो जहां डिफरेंस आपको दिखाई दे, आप अपनी तरफ से भर के देख लीजिए। फाइनल डिसीजन कोर्ट का होगा। अगेन आई एम टेलिंग यू, ऐसा नहीं है कि आपने भरा और आपको मिल जाएगा। कोर्ट अलाउड करेगी, नहीं करेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, हम सिर्फ एक ऑप्शन दे रहे हैं। हम उसको बता रहे हैं कि आउट ऑफ 95 लोग, 96 लोग, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं प्रोजेक्ट मूव करने के लिए, और यदि वो इंटरेस्टेड हैं तो उनकी ये चॉइस है, यदि मिल सकती है तो, अदरवाइज कोई वो नहीं है। नहीं तो हम वो अपने स्ट्रिक्ट हैं, लेट देम डिसाइड कि वो बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। कंसेंट हम नहीं दे रहे हैं, वेरी सिंपल, हम प्लान चेंज करने का कंसेंट नहीं दे रहे हैं, ठीक है? तो ये ओवरऑल मेरी तरफ से है। बाकी अब किसी का कोई क्वेश्चन है, मतलब ऐसा नहीं, मल्टीपल ही, जो जो भी मिनिमम क्वेश्चन है वो हम कर सकते हैं। अजय जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी। अजय जी, thank you so much for all the effort that you guys have taken for all of us. So on behalf of the group, I thank you. My only question is, I have two questions. First question is, जैसे आप बोल रहे हैं कि हम अपना प्रोजेक्ट मूव करके दूसरे प्रोजेक्ट के लिए हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जी। तो सर इसके अंदर अगर मान लीजिए हम रिक्वेस्ट करते भी हैं, तो उसका रेट, उसकी प्राइसिंग किस हिसाब से तय होगी? बिकॉज जिस प्राइस पे हमने लिया और जिस प्राइस पे आप वो देंगे, उसके ऊपर नहीं कोई तो उसका देखिए, पहली चीज तो मैं आपको एक क्लियर बता दूं कि अभी हमारे पास, अभी मैंने देखा 2 लोगों के क्वेश्चन आए हैं, प्रशांत दत्ता का भी और प्रतीक दो का भी, इसमें चैट में भी सेम वो है। पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि उसका आज का प्राइस तो नहीं लगेगा, दोनों ही केसेस में डिफरेंस होगा। अब उसमें जो उनका बुकिंग प्राइस था वो उनके पास रखा हुआ है कोर्ट के, अब उसमें वो क्या, वो कुछ ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं, वो कोर्ट फैसला करेगी। लेकिन हाँ, आज का प्राइस नहीं लगेगा और डिफरेंस आपको देना होगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको लेके देता हूं, जो वहां पे डिस्कस भी हुआ। उसने मेरे को ऐसे ही बोल दिया, वो मजाक मजाक में, चूंकि कई बार वो मजाक के मूड में आ जाता है, लाहौटी, मतलब उसको लगता है कि हमारे पास कहीं से मतलब पेड़ लगा हुआ है पैसे का। बोले अजय, आप वो बलगुंडी में क्यों नहीं चले जाते? तो मैंने पूछा, साहब बरगुंडी में मिनिमम प्राइस जब उसकी बुकिंग हुई थी वो 3.5 करोड़ थी, मेरा तो फंसा ही 30 लाख 35 लाख है। बोले ठीक है, बाकी का दे दो, वो ले लो। तो एक ऑप्शन, ना मैं हंस पाया ना जवाब दे पाया, तो वो एक ही बात है, पता नहीं बाकी लोगों का मुझे नहीं पता। तो केस वही है बॉस, डिफरेंस तो देना होगा आपको। अच्छा, It can be, yeah, like it can be large or it can be like अंबर एक प्रोजेक्ट है या कुछ है, जैसे उसमें मे बी डिफरेंस विल बी लेस। द कोई यूनि होम्स में शिफ्ट करता है तो इट माइट बी, हाँ, एक बेस्ट ऑप्शन आप लोगों को, जैसे यदि आप करते हैं, मनीष बिल्कुल सही पॉइंट आपने, थैंक यू, कि यूनिहॉम्स है। यूनिहॉम्स का जितना मुझे पता है कि वहां पे जितना भी प्रोजेक्ट साइज है 1100-1200 रुपए, 1100-1200 स्क्वायर फीट का है, उनका रेट भी
लगभग हमारे जितना था, मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन हमारे जितना ही था। तो यदि वो उसमें होता है और हमें अलाउड करते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ बॉस, कि यदि यूनिहॉर्म्स के फ्लैट की प्राइस 45 लाख थी, हमने 30 दे रखा है, तो हम 12-13 लाख दे करके ही उसमें जा सकते हैं समथिंग। और उसके अलावा यदि कोर्ट कुछ डिसाइड करती है, कोर्ट क्यों डिसाइड करती है, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ये उसने नहीं बताया, लेकिन मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आम्रपाली के केस में हुआ, मैं रह रहा हूँ आम्रपाली में, मेरी अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई, लेकिन वो केस चल रहा है, वहां हुआ है। वहां पे सीआर ने कोर्ट से अप्रूवल लेकर के कहा है कि कोई भी प्रोजेक्ट चेंज करता है, कोई आता है दूसरे प्रोजेक्ट से, जैसे नोएडा एक्सटेंशन से बहुत लोग मेरे प्रोजेक्ट में आए सेक्टर 119 में, सो दे चार्ज 200 रुपीज पर स्क्वायर फीट, अलग से उन्होंने चार्ज किया है। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि वो जी। नंबर 2 में गया है, नंबर 1 में वो कोर्ट में जमा हुआ है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जब मूव करेंगे तो कोर्ट क्या कहेगा, 100 रुपए मांगे, 50 रुपए मांगे, हाँ ऑब्वियसली 1000 रुपए स्क्वायर फीट नहीं मांगेगा, लेकिन डिफरेंस का वो कुछ आपसे ले सकता है, ट्रांसफर चार्जेस और वट एवर इज द प्राइस डिफरेंस। सॉरी। जी दूसरी अजय दूसरी जी चीज इसके दूसरी चीज अजय अजय जी इसकी ये भी है कि देर आर ऑल्सो लोकेशंस आउटसाइड एनसीआर, सम हाँ ऑफ अस मे इवन वांट टू लुक एट लोकेशंस आउटसाइड एनसीआर। नहीं, वो तो मैंने लिस्ट जो अभी दी है ना सुनील सर, जो अभी भेजा है, तो पेज 23 ऑनवर्ड से लेके 26 तक, वहां पे करीब मेरे ख्याल में 50 या 60 प्रोजेक्ट हैं, चेन्नई, बेंगलोर, सारी जगह है, तो आप सारी जगह का देख लीजिए, आप सजेशन दे दीजिए। इसके अंदर अजय जी मेरा एक और इसी का एक एडिशनल सवाल है जो पार्ट भी है इसका। मान लीजिए किसी ने बड़ा फ्लैट लिया हुआ है 4 बेडरूम का, और अगर वो माइग्रेट करना चाहता है स्मॉलर फ्लैट पे, तो वो कर सकता है? और उसके डिफरेंशियल जो अगर मान लीजिए कुछ छोटे फ्लैट का रेट कम होगा, बड़े का ज्यादा होगा, तो क्या वो वापस मिलने का कोई चांस है? इस भाई तरह का साहब कोई देखो, मतलब? एक एक सिंपल हिंदी समझ लो, जी वापस तो चवन्नी आएगी नहीं, ठीक है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है। पैसे सिर्फ अच्छा एडजस्ट होंगे, राइट? बस। हाँ, ये थैंक यू, एडजस्टमेंट की बात करो आप। थैंक यू अजय जी। ये एफिडेविट क्या क्या कैसा देना है, इसमें देना पड़ेगा? वो आपको कुछ नहीं देना, वो लॉयर की तरफ से, पूरे ग्रुप की तरफ से सबमिट होगा। अच्छा, जस्ट हमको वो फॉर्म सबमिट करना है। आपको तो फॉर्म उसमें में अपना उसमें आइडिया दे दीजिए, हाँ ठीक उसका है, ठीक डाटा है। मैं उसको दे दूंगा, उसके बेस पे वो एफिडेविट वही ओके डिजाइन ओके करेगा, वही सिंगल ओके, एफिडेविट थैंक होगा। यू अजय। हाँ, उसपे हमारे साइनिंग हो ओ जाएंगे, क्योंकि मैं जनरली मैं ही साइन करता हूँ केस ओके, में, हाँ मैं यस करके दे ये दूंगा। है। हाँ। देखिए ओके उसमें ओके उसमें या उसमें ये है कि हम ग्रुप के अंदर फॉर एग्जांपल वी आर 96 पीपल, राइट? उसके अंदर हो सकता है 70 कहें यार ठीक है वी आर एग्री फॉर द शिफ्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, देन वी विल गिव द नेम फॉर दोस दीज नंबर ऑफ पीपल। बाकी के वी विल कहे कि दे विल स्टिक टू रिफंड, but there are see understand there are 300 more people outside this group also are there, उन्होंने भी कुछ कंसेंट दिया होगा अपना, जो हमें बिल्कुल नहीं पता। हाँ, हम तो ये अपने ग्रुप के बारे में हम बता सकते हैं कि इस ग्रुप के अंदर से these are the 70-75 people who wants to shift and this is the affidavit for those people, you adjust them into, like we will give the option, या अगर कुछ हमारे को समझ में आती है तो we will say कि you please look into these 4 5 6 projects, वहां पे आप इनके लिए ऑप्शन देख दो और हमें बताओ कि क्या कमर्शियली क्या बनता है इनका। हाँ, और जैसे जैसे जो अभी मनीष ने बोला, टोटल 432 लोग हैं बॉस, 432 में हम तो 96 ही जुड़े हुए हैं, बाकी लोगों का तो कभी हमसे कनेक्ट भी नहीं हुआ, लेकिन वो लॉयर्स के थ्रू, अलग अलग लॉयर्स के थ्रू वहां पे एफिडेविट दे रहे हैं, उनके भी लॉयर। जैसे एक और दूसरा लॉयर है वो लाहौटी के अलावा, जो लास्ट टाइम लड़ा भी था अल्टीमेटली, काफी जिसने वो की थी, मैं नाम उसका मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, मैं भूल गया अभी, तो वो भी और रेजिडेंट की तरफ से है, तो वो भी सबमिट करेगा। तो जरूरी नहीं है कि आपने भरा, आई एम जस्ट टेकिंग अगेन एन एग्जांपल, कि आप, मैंने बोला यार मैं तो घर में, मेरा कोई रिश्तेदार है मोहाली में रहता है, तो मैं मोहाली का ले लेता हूँ फ्लैट, हो सकता है 4 आदमियों ने भर रखा हो ऑलरेडी, तो वो डिसाइड करेंगे, आप सिर्फ अपना ऑप्शन दे रहे हो बॉस, यदि सर आप ऑप्शन। इंटरेस्टेड हो तो। अजय जी, अगर बाई गिविंग द ऑप्शन आर वी क्लोजिंग आवर रिफंड वाला, तो हम क्लोज नहीं कर रहे जैसे कि आप बता रहे हैं। बॉस रिफंड वाला तब तक क्लोज नहीं होगा जब तक कि ऑप्शन अप्रूव नहीं हो जाएगा। अच्छा, बाई चांस हमने ऑप्शन दे दिया, लेट अस से 96 में से 50 ने 60 ने दे दिया ऑप्शन, और जी। उसमें से सबका या 80-90% का हो गया, तो ग्रुप तो बिल्कुल कमजोर हो, बाकी रिफंड वाले जो 30-40 बचेंगे। दूसरा उस एक और केस है कि मतलब कितना टाइम दूसरी सोसाइटी में लगने वाला जिसमें हम फिलअप करेंगे, वी डू तो नॉट नो। वो भी उसमें प्लान आया हुआ है बॉस, वो जो मैंने आपको 236 पेज भेजे हैं उनको अच्छा पढ़िए,
हर जी। सोसाइटी में उन्होंने लिखा है कि उन्हें कितना टाइम लगेगा, जी। ठीक है। नहीं बट उसमें फ्लैट का कॉस्ट नहीं दिख रहा मेरे को वो। नहीं, कॉस्ट तो मैंने आपको बोल दिया, हमारे पास भी नहीं है कॉस्ट। कॉस्ट या तो आप कैसे कौन इंटरनेट लेंगे से, उसमें? नहीं कॉस्ट आप इंटरनेट से या तो सर्च कीजिए, और नहीं तो बस वो वेट कीजिए, वो खुद बताएंगे बाद में। कॉस्ट, एक मिनट अजय, एक रफ एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट अगर लेना है तो जो आपने ये अपलोड किया है ना, इसमें एक है जैसे किसी एक प्रोजेक्ट में टोटल फ्लैट्स 500 है, ऑलरेडी सोल्ड 400 है, तो बैलेंस फ्लैट 100 है, तो आगे एक बैलेंस टू बी रिकवर्ड अमाउंट है, उससे अप्रोक्सीमेटली निकल सकता है। सर वो नहीं, मतलब but उसमें भी उसका 2 BHK 3 BHK 4 BHK। हाँ, तो बस उसका कोई हमारे पास वो डाटा नहीं है। बट दैट इज नॉट श्योर, वो एक रफ आइडिया मिल सकता है। एक्चुअली सेम यूनिटेक में ही अलग अलग रेट्स पे खरीदा है, सो दैट्स समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू फिगर आउट। तो वो तो we are नहीं, currently उससे नहीं seeing the निकाल सकते base rate. क्योंकि कुछ कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान होंगे, कुछ होंगे, तो वो सब नहीं, कुछ नहीं, होगा, तो नहीं, ऐसे नहीं निकाल नहीं, सकते। वो पता करना होगा, वो हम इंटरनेट assume पे ही करके सर्च करके देख सकते हैं। हम एज्यूम करके चल रहे हैं, इट विल बी द लॉन्च रेट और जो बेस प्राइस था ना जब स्टार्ट में प्रोजेक्ट के, और मे बी 2011 प्राइस, वी आर एज्यूमिंग दैट पर्टिकुलर वन दे माइट कंसीडर कि हमने इस टाइम पे बुक किया था और इस टाइम पे उस प्रोजेक्ट का क्या रेट था, मे बी समथिंग लाइक दैट। then Manish ji what we can do is we can go to the relevant project का ब्रोशर, जो उसका लॉन्च ब्रोशर था या जो अभी भी वेबसाइट ब्रोशर होगा, उससे थोड़ा सा आइडिया मिल सकता है। सर वही मैंने बोला, वो हाँ। एक इंडिविजुअल को जब आप चूज कर रहे हैं, इंडिविजुअल को नेट पे थोड़ा सा हाथ पैर मारना पड़ेगा। हाँ, उसका कोई डाटा उन्होंने कहीं नहीं रखा है, तो आपको नहीं दे, उससे भी एक एस्टिमेशन ही आपको लगेगा। और आंसर टू द क्वेश्चन कि भैया यदि ग्रुप कमजोर होगा, वो होगा, कोई ग्रुप कमजोर नहीं होगा बॉस। हम तो स्ट्रिक्ट हैं अपने फैसले पे कि हम तो रिफंड के लिए इंतजार कर रहे हैं, या हमारा प्रोजेक्ट जब वो करेंगे। लेकिन उसने एक आइडिया दिया है कि भाई साहब रिफंड तो आपको मिलने के चांसेस आप भूल जाओ, क्योंकि इनको 2.5-3 हजार करोड़ आ चुका है, कोर्ट में जमा हो चुका है, लेकिन ये रिफंड का तो जिक्र ही नहीं कर रहे। और सिर्फ उसका पर्पस ही ये है कि ये चाहते हैं कि ये चंद्रा अंदर रहें, किसी भी तरीके से साइप्रस से या बाकी उनसे जो इनका पैसा है कुछ और आ जाए, ताकि हम इसे बना सके। अजय सर, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट थोड़ा सा ये बोलूंगा कि आपने बोला कि रिफंड पे स्ट्रिक्ट है, वो तो बहुत अच्छा है ही। दूसरा, अगर हम अपना ये कंसेंट देते हैं कि मैं इस प्रोजेक्ट में शिफ्ट करना चाहूंगा, तो उस केस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन्वेंट्री की आएगी। अगर आज आपने या मैंने किसी ने मान लो 6वां फ्लोर या 7वां लिया है, तो वहां कोई गारंटी नहीं है कि मैं टॉप फ्लोर पे जाऊं या क्या फेसिंग रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में मेडी ऐसा ही जो सवाल आपने पूछा ना जी, तो ये मैं समझो कि ये सवाल पहली बार लाइफ में आपके दिमाग में आया। नहीं वो आप मेरे दिमाग में तो नहीं, लेकिन एक है ही, मैं बता दूं आपको, नहीं ऑन लाइटर नोट मैं बता दूं, आपसे पहले ये दिमाग में आया था एक लॉयर के, आम्रपाली के केस में, ठीक है। अच्छा। और वो लॉयर और कोई नहीं, लाहौटी जी थे। अच्छा। ठीक है, तो जब उन्होंने बोला तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला डोंट एक्सपेक्ट लस्सी एंड मलाई बोथ। ठीक है, वो ऑर्डर में लिखा हुआ। एक और एग्जांपल देता हूँ, सेक्टर 117 में एक्सक्यूजेट एक प्रोजेक्ट है, हाँ, जिसमें 340 फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट होने थे, जिसके एंड उसके सोल्ड आउट हुए 44 सिर्फ, एंड दे आर इन डिफरेंट टावर। तो जो द पर्सन हु वाज टॉकिंग ऑन दैट डे लाइक पेविलियन में, उसने सिंपल ये कहा कि हम इस 334 की तरफ अभी नहीं देख रहे, एंड they will shift all these 44 people into one tower and complete that one। और उसको लॉटरी के बेसिस पे या जैसे भी है उस तरीके से फ्लैट अलोकेट होंगे, जैसे भी होम बायर्स कहेंगे। कहता हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, आप इन 44 फ्लैट्स को एक टावर में कैसे बांटना है वो अब मैं होम बायर्स को छोड़ता हूँ। वो ऐसे इन केसेस में होगा। बस वो होम बायर को कुछ नहीं होगा, वो अल्टीमेटली कोर्ट का जो भी रिसीवर है वहां पे, राइट, जो भी वो उसको अपॉइंट कर रहे हैं वहां पे मैनेजमेंट की साइड से, वो उसको एक लॉटरी सिस्टम से वो कर दे। मैंने देख लिया ना यहाँ पे आम्रपाली में, जितना भी उन्होंने वहां से मूव किया, नोएडा एक्सचेंज से IBM ऑफिस जहां हमारा ऑफिस है उसके सामने से उन्होंने निकाला कि भाई हम इसको नहीं बना रहे, बाकी लोगों को बोल दिया जो बचा है इसमें से हम बांट रहे हैं, लेना है गुड, नहीं लेना है तो आपका ऑप्शन खड़ा है। अजय जी एक और पॉइंट ये था कि ये जो
अभी इंटरव्यूज होने हैं मंडे को, मेडिकल वालों को कुछ आइडिया है क्या होना है इसमें? वो हमें नहीं पता बॉस, हम ना उस कोई इंटरव्यू idea में नहीं है ना हमें पता है। अच्छा, है अच्छा अजय अजय कबीर। जी, हेलो हेलो एक क्वेश्चन ये था अजय जी कि अब अगर हम अपने चॉइसेस में ये दिखा रहे हैं, सभी के अलग अलग हो सकता है इंटरेस्ट आ जाए, किसी का कहीं मन हो, किसी का कहीं मन हो। हमारा अभी तक थोड़ा ये रहा है कि हम सब साथ में रहे, एक सुर में हमने एक ही चीज की बात की अभी तक। अब अगर हम ऐसे जाएंगे और हम अलग अलग प्रोजेक्ट के नाम ले लेंगे तो उससे हमारी थोड़ी केस थोड़ी हिल सकती है, क्योंकि फिर हर आदमी इंडिविजुअली फाइट करेगा फिर उसके बाद। कोई केस हिल नहीं रहा, वो एक ही केस में जा रहा है बॉस। मैं तो कह रहा हूँ ना, अच्छा आप मत चूज करो, आपको ऑप्शन मिला है ना। नहीं नहीं, And मैं they ये पूछ are रहा था अजय just जी। taking options. They हाँ। may not agree to our options. They may club all of us in only one project or in across one or two projects. और जैसे जैसे उन्होंने एक ऑप्शन रखा है कि भाई साहब हम पूरा नहीं बना रहे, एक्विजिट में हम एक टावर बनाएंगे, राइट। उसी तरह वो कहेंगे कि अभी हम देख लेते हैं कितने लोग तैयार हैं मूवमेंट के लिए, तो हम एक प्रोजेक्ट ले लेते हैं। जैसे वहां पे एक यूनिवर्ल्ड है, एक प्रोजेक्ट है यूनिवर्ल्ड में। हमारे यहाँ तो फिर भी मैं कहता हूँ कुछ हुआ है, यूनिवर्ल्ड में कुछ भी नहीं हुआ। अल्टीमेटली उनका मॉडल यही है कि जो 3 प्रोजेक्ट है वो तीनों सेम ही रेट के थे, लगभग साइज में थोड़ा डिफरेंस था, ठीक है। इन तीनों को मर्ज करके हम बनाते हैं 5 या 6 टावर बना करके इन सबको अंदर चलता कर देते हैं। तो अजय जी हमारे लिए ये बेनिफिशियल नहीं रहेगा क्योंकि हम सारे थोड़ा दिमाग लगा के एक जगह की बात करें, ताकि उनको ये लगे कि अगर हम वहां पे सारे 90 के 90 फ्लैट्स एक साथ बना दें एक ब्लॉक 2 ब्लॉक में, उसका ज्यादा फायदा हो जाए। बॉस 90 फ्लैट बना दे, उसी को जो एफिडेविट में वो सबमिट कर रहा है लॉयर, वो सबसे पहली बात ही ये कह रहा है कि भाई साहब आप मेरा टाइम फ्रेम करो। मैं आपने फिर इसका मतलब सुना नहीं। पहला उसका व्यू है कि भाई आप इसको प्रायोरिटाइज कीजिए, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट 5% में भी नहीं आता। नहीं मैं ये कह रहा हूँ अजय जी, हम सारे अगर अलग अलग प्रोजेक्ट्स की चॉइसेस देंगे, किसी ने मान लो नोएडा का कुछ दिया, किसी ने हो सकता है गुड़गांव का दिया, अब हम अपनी अपनी इंडिविजुअल ओपिनियन बना रहे इंडिविजुअल हैं। चॉइस नहीं है, इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं है, ये सिर्फ एक सजेशन है। मैं सिर्फ एक विलिंगनेस दे रहा हूं कि मैं जा सकता हूं एक दूसरे प्रोजेक्ट पे। इसको इस मतलब से आप समझ लीजिए। Ajay ji, what he is saying is rather than 15 of us choosing 15 separate projects, doesn't it make sense that we just zero down onto 1 or 2 projects and go to them saying कि यार हम सबको इस एक या इन 2 प्रोजेक्ट में हाँ, हम सारे यूनी होम्स में जाने के लिए तैयार है, वहां पे 90 की इन्वेंटरी दिख रही है एज एन एग्जांपल, राइट। वहां 90 की इन्वेंटरी हमें दिख रही है, हम 90 वहां जाने के लिए तैयार हैं। बहुत वो एक सजेशन है बॉस, आई थिंक वो एक बेटर सजेशन है। करेक्ट। अच्छा वो एक बेटर सजेशन। अजय जी जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं और उसमें कुछ यूनिट्स वो हैं कि जो जिनमें पोजीशन के लिए वो ऑफर नहीं दिया है, उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर दोगे यार, मतलब आप कमाल, आप सवाल पूछ रहे हैं, उसको पोजीशन नहीं दिया तो उसको निकाल देंगे जिसके पैसे आए हुए हैं। नहीं वो यूनिट्स कैसे शो कर रखी हैं उन्होंने? वो तो आप उसमें तो सिंपल सा उसने समझाया है, कितनी यूनिट है, 400 यूनिट है, 400 तो मतलब 400 यूनिट बननी थी, 390 बनी है, या 400 की 400 बन गई है। 7 लोगों को हमने पोजीशन नहीं दिया अभी तक, बस। तो उनको 7 को आप कैसे ले लोगे? पोजीशन नहीं दिया क्योंकि उनका फ्लैट तैयार नहीं किया, इसलिए नहीं दिया। कम से कम यार इस तरह का सवाल मत पूछो कि मतलब जिसका कोई लॉजिक नहीं हो। जैसे ये सवाल उसने पहले बोला कि भाई उसमें है यूनी होम्स में है, वहां पे लगभग 90 यूनिट बिकी ही नहीं है, हम वहां के लिए कह सकते हैं। करेक्ट। अब ग्रुप में अजय जी ये डिसाइड कर लो कि करना क्या है, बस वो कर लेंगे। एक ग्रुप में जाना है, एक में चले जाएंगे, और अगर छोड़ना है उसको तो छोड़ देंगे। मेरे हिसाब से हाँ जी, सॉरी अजय जी, मनीष जी, अनुज बोल रहा हूँ। तो मतलब कोर टीम का क्या स्टैंड है अभी इस पे? देखिए हमारा स्टैंड क्लियर है बॉस, हम उसको बोल रहे हैं कि हम तो जी अभी भी अपना रिफंड चाहते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि जो एफिडेविट में वो 3 ऑप्शन उसमें उतरेगा। भाई पहला तो हमारा रिफंड ही दे दो, यदि आप रिफंड दे रहे हो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप ये बताओ कि हमारे प्रोजेक्ट को आप प्रायोरिटाइज करोगे या नहीं करोगे। क्योंकि यदि वो प्रोजेक्ट जनवरी में यदि वो शुरू करते हैं तो भी वो कहते हैं हम 3 साल बाद देंगे, जो उन्होंने टाइमलाइन दी है 39 महीने दी है हमारे प्रोजेक्ट की, 39। ठीक है, मैंने एक चीज नोट किया है आपके इतने अभी तक जो आपने सबको एक्सप्लेन किया, कि ये जो ऑप्शन 2 है पोजीशन वाली, मतलब किसी और प्रोजेक्ट में जाने वाली,
ये हमारे पास शायद लास्ट तक ओपन रहेगी ऑप्शन। यस, मतलब जब वो बोलेंगे कि भाई हम तुम्हारे पैसे नहीं दे सकते, तुम जो भी दिए वो भूल जाओ, तब भी वो हमें एक ऑप्शन जरूर देंगे कि या तुम ऐसा करो कि दूसरे प्रोजेक्ट में ले लो। क्या कहते हैं आप इस पे? तो नहीं तो वही तो मैंने आपको बोला है ना कि बॉस, लेकिन हम बार बार एफिडेविट देके नहीं, हम तो आज कह रहा हूँ ना, मैं आज की उसमें बोल रहा हूँ भाई मेरी पहली प्रायोरिटी मेरे पैसे दे दो विद इंटरेस्ट। आप कहते हो नहीं दे रहा, मेरी दूसरी प्रायोरिटी है कि मेरे प्रोजेक्ट को आप प्रायोरिटाइज करो। आपने गलत मार्क किया है अपने रेजोल्यूशन प्लान में कि मेरा प्रोजेक्ट कैटेगरी बी में आता है, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट कैटेगरी बी में नहीं आता, क्योंकि उसमें 5% भी काम नहीं हुआ है। ये फोटो है, फोटो में दे रहा हूँ लेटेस्ट, ठीक है। तीसरा, मैं खुला हूं, यदि आप मेरा प्रोजेक्ट भी प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो, मेरे पैसे भी नहीं दे रहे हो, तो मुझे दूसरे प्रोजेक्ट में भेज दो। ठीक है, तो फिलहाल अपना स्टैंड रिफंड वाला ही रहना चाहिए। हाँ, तो लेकिन आपसे मैं डाटा इसलिए मांग रहा हूँ कि हम रोज बैठ करके ये ना डिस्कस करें, आप अपना एक चॉइस दे दीजिए, ठीक है। पहले 2 स्टैंड बिल्कुल क्लियर हैं कि हम वहां पे हैं, तीसरा आप एक चॉइस दे दीजिए। मान लीजिए उन्होंने कहा अच्छा चलो भाई बताओ कहाँ जाओगे, तो हम बोलते साहब ये हमारे इंटरेस्ट है, आप दोगे क्या? और आपको ये मैं बता दूं एक दिन में वो फैसला नहीं लेंगे बॉस, ऐसा नहीं है। उसके लिए प्रॉपर नोटिस इश्यू होगा, प्रॉपर सब कुछ होगा। जैसे आज मैं मनीष को बता रहा था कि मेरी सोसाइटी में 18 फ्लैट ऐसे हैं जो नाम में चढ़े हुए लोग नहीं आ रहे हैं, वो चूंकि डिक्लेयर करने, चूंकि वो किसी फाइनेंसर के हैं, स्पॉन्सर के हैं, जो भी हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उनको खाली करा के बेच दिया है उन्होंने। 6ठा नोटिस जा चुका है अभी तक, 6 नोटिस वो इश्यू कर चुके हैं, बार बार कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा वो एक दिन में तो आज की मीटिंग से ये बिल्कुल क्लियर, हाँ आज की मीटिंग से सर ने, अजय जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया अपना फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ये क्लियर है। थर्ड ऑप्शन के लिए अगर इंडिविजुअल चॉइस पे जाना है तो वो देख लो, नहीं तो ग्रुप में डिसाइड कर लो किस प्रोजेक्ट का देना है, क्योंकि प्रायोरिटी हमारी फर्स्ट सेकंड है, वो बोल ही रहे हैं। बस मुद्दे की बात ये है थर्ड के लिए कि जो चॉइस देनी है वो डिसाइड कर लो कि क्या देनी है, तो बेटर रहेगा कि एक साथ सब में देंगे, या फिर अलग इंटरेस्ट अपने हिसाब से देना है तो वो एक अलग बात है। तो वो मैं अजय जी से बस रिक्वेस्ट करूंगा कि थर्ड और ऑप्शन, मेरी एक और क्वेश्चन थी, एक बार ये ऑप्शन रिपीट कर देंगे, कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लें? एक बार ये तीनों ऑप्शंस रिपीट कर देंगे। फर्स्ट तो सर रिफंड है, क्लियर कट वो उन्होंने बता दिया एक सर ने, अजय जी ने। फर्स्ट रिफंड है। सेकंड हमारा प्रायोरिटाइज करो, क्योंकि हमारा 5% बना है। थर्ड वो इसलिए मांग रहे हैं कि अगर उन्होंने कहा कि ना मेरे पास एक चवन्नी देने को है और ना मैं प्रायोरिटाइज कर सकता, आप और क्या कर सकते हो, तो ये कह पाएंगे कि मैं दूसरे प्रोजेक्ट में शिफ्ट होना चाहता हूँ, मेरी ये लिस्ट है। तो बस उस लिस्ट के हिसाब से, मतलब उस लिस्ट के लिए डिसाइड कर लो कि हमें क्या देना है, हम सारे इकट्ठे एक में दें या अलग अलग दें। तो बस मैं यही सजेशन कर सकता हूँ, क्या करना है। हाँ जी बोलिए। एक मैं कंप्लीट कर लूं पहले। अजय जी, अनुज बोल रहा हूँ, अनुज बोल रहा है, एक मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। मैंने एक चीज आपसे पूछ दी थी, दूसरी चीज जो मुझे लग रहा है ये ऑप्शन 3 में आप कोई इंटरेस्ट या कोई पेनाल्टी तो मुझे लगता है भूल जाइए। तो मैं मतलब क्वेश्चन क्या है आपका? सर इंटरेस्ट तो वैसे भी भूल जाओ, वो तो मुझे बोला नहीं। क्वेश्चन क्या है वाले में? फर्स्ट जो अजय जी क्वेश्चन ये है कि रिफंड वाला जब हम बात कर रहे थे उसमें हमें शायद कोर्ट ने एक जगह पे हमें बताया भी था कि 10% या 12% उसको हमें मिलेगा। भूल जाओ सारा कुछ, उसने क्या बताया था, डिग्री खत्म हो गई है। आगे बोलो। हाँ, लेकिन ये ऑप्शन 3 में अगर आप जब जाएंगे तो मुझे लगता है वो तो बिल्कुल ही आप भूल जाइए कि आपको कोई अभी तक के आपके पैसे के इंटरेस्ट मिलेंगे या पेनाल्टी मिलेगी कोई यूनिटेक की तरफ से। अनुज, लेट मी रिपीट, व्हाट इज योर क्वेश्चन? नहीं मतलब जैसे रिफंड में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि हमें कुछ पेनाल्टी मिले। आप तो एक्सपेक्ट भाई साहब 1685 स्क्वायर फीट का फ्लैट कर रहे थे, ठीक है। कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है सिंपल, क्वेश्चन ये है सिंपल कि ऑप्शन 3 में हम कुछ भी ऐसा मतलब पेनाल्टी या इंटरेस्ट एडजस्ट होगी हमारे अमाउंट में, वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। करेक्ट भाई साहब, वो आपको मिलेगा ऑप्शन, पहले वो सोचो। ये पेनल्टी पता नहीं, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी कि हम इसको लंबा करेंगे, बार बार एक सवाल का जवाब सेम तो नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब सेम ही मैं बार बार रिपीट नहीं कर सकता। पेनल्टी और मुझे ये देंगे, मुझे एक अपोलॉजी लेटर आएगा सुप्रीम कोर्ट से, कुछ नहीं आएगा। अजय जी क्वेश्चन है मेरा कि अगर कोर्ट जो है रेडी हो जाती है कि हम जो है
प्लान बी के साथ जाते हैं, हम प्रायोरिटाइज करेंगे आपके प्रोजेक्ट को, और मान लीजिए उन्होंने थोड़ा बहुत काम कराना भी स्टार्ट कर दिया, तो क्या हम रेडी हैं फिर जिन लोगों ने कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में दिया है, फिर हम और एडिशनल इंस्टॉलमेंट देते रहें उन्हें तो यूनिटेक को? उसके लिए कंस्ट्रक्शन लिंक या वो कुछ नहीं है बॉस। उसके लिए तो यदि वो प्लान वो होता है, वहां पे प्रोजेक्ट आपका बनता है, तो वो अपना ही प्लान देंगे, और जो उन्होंने दे भी दिया है उस पे हर तीसरे महीने इक्वल अमाउंट में पैसा देना पड़ेगा। और अगर वो पैसा फॉर एग्जांपल कोई नहीं देता, कि मान लीजिए मैं तो रिफंड के साथ ही अटका हुआ हूँ, तो क्या जो मैंने इनिशियल डिपॉजिट करा तो वो क्या फोरफीट हो जाएगा, क्या होगा उसका फिर? नहीं, फोरफीट कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन वो कब मिलेगा वो पता नहीं। Okay, thank you. So Ajay, Ritesh here. So what I understand, question one, option 1 and option 2 में सभी it's a standard agreement of everyone कि refund is first priority और या फिर flat दे दो, this is second priority, nothing to choose from. Third वाला हमने choose करना है whether we want to go with that other flat or not. Correct? Yes, yes. Okay. And अजय एक रिक्वेस्ट है कि पहले आपने जब ये लिंक भेजा ना, आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड माय फॉर्म एंड आई एम श्योर कुछ और लोगों ने भी किया हुआ, सो पोस्ट दिस कॉल मे बी वी कैन डिसरिगार्ड द प्रीवियस। वो तो उसको तो रितेश जी आई विल इमीडिएट आफ्टर दिस कॉल I will immediately reset the earlier submitted. There are 4 people who have submitted the data, rather 5 if I include mine also. I will clean that sheet and fresh options to be given. So after this call, in fact, I will clean that sheet while we are talking. Probably. Got it. So it makes sense to give some option for point 3, I think, right? Hello Ajay ji, Sunil Sibal this side. हेलो। हाँ जी, बोलिए सिब्बल जी। हाँ, मैंने ये पूछना था कि अपना हमारे जैसे 3 ग्रुप्स बने थे, है जी? अपना ग्रुप 1, 2 and 3 जब हमने वहां पर किया, तो आप जो अपना नंबर बता रहे हैं 90 और नंबर, बिकॉज ज्यादा नंबर है हमारा टोटल एज ए अपना सर 1, 2, 3 मिला करके 96 है चैप्टर। 96 है सारे। ठीक है चलो, थैंक यू सो मच सर। 1 और 2 मिला के नहीं 3 का भी उसमें ऐड हो गया था मनीष, उसमें वो उन्होंने बाद में ऐड कर दिया। 3 मिला के थोड़े से ज्यादा है, वो 120 प्लस है कुछ, लेकिन उनका उसमें वो कर दिया ना ये 43 के 46 तो अपना ग्रुप 3 के थे, और आपने 1 and 2 अलग कर लिया था, ऐड करवा लिया था वो। ठीक है। हाँ जी प्रवीण, लास्ट क्वेश्चन अब। लास्ट अजय जी, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। बेसिकली वी हैव पेड द कंप्लीट अमाउंट, लाइक वी हैव दिस सबवेंशन प्लान में हमने कंप्लीट अमाउंट पे कर दिया था, एंड नाउ व्हेन वी डिसाइड टू चेंज और चूज, आई एम टॉकिंग ऑफ ओनली ऑप्शन 3, व्हेन वी डिसाइड टू चेंज which property can we take, so will it be like the price, will they consider the price of already been given? बॉस, इस क्वेश्चन का अमृत, इसका जवाब आ चुका है पहले, आप इसकी रिकॉर्डिंग सुनोगे तो उसमें है। तो घूम करके वही क्वेश्चन हम बार बार पूछने से मैं उसमें बता चुका हूं कि यदि हम उसमें तीसरे ऑप्शन में जा रहे हैं, तो जिस प्राइस पे आपने अपना फ्लैट बुक किया था, उस प्राइस को, और जिस प्राइस पे वो वाला फ्लैट बुक हुआ था उस टाइम में, जो भी उसका वाउचर आप ढूंढिए, उसमें एडजस्ट किया जाएगा वो अमाउंट। ओके। अजय जी, एक क्वेश्चन नहीं है, मतलब जस्ट जो मैं समझा हूँ, मतलब आपसे डिस्कस ही करना चाह रहा हूँ, जो अभिमन्यु बोल रहा हूँ मैं। अगर हम, जैसे आपने कहा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 के लिए हम फाइट करते हैं पहले, तो अगर ऑप्शन 3 तभी आएगा जब 1 और 2 दोनों हमारे लिए डिसरिगार्ड हो गई। जब ऑप्शन 3 की हमें बात करनी है, तो अगर हम 90 जाने इकट्ठे हैं, तो प्रेशर उतना ज्यादा बिल्ड होगा कि अगर हम कोई भी एक चीज को डिसाइड करें प्रोजेक्ट को, तो क्योंकि अगर 90 किसने रोका? 90 प्रोजेक्ट, यार वही सवाल हम बार बार क्यों पूछ रहे हैं मेरे दोस्त? आप सवाल नहीं पूछ रहा, 90 यूनिट किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में नहीं है सिवाय एक यूनिहोम्स के, वो हमने ऑप्शन दे दिया, सब लोग तैयार है, बहुत अच्छा, लेकिन हम ऑप्शन दे रहे हैं बाकी को। यदि कोई बंदा बोलता है कि मैं यूनिहोम्स में नहीं जाता, मैं छोटा प्रोजेक्ट नहीं देता, क्योंकि यूनिहोम्स में मैंने ही सबसे पहले बोला कि वहां पे सबसे बड़ी यूनिट 1100 स्क्वायर फीट की है। हाँ जी ठीक है। यूनिहोम्स के कौन सा 2 या और 3? तीनों में मिला के, तीनों में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, 1, 2, 3। अजय कबीर, एक लास्ट क्वेश्चन। सो आप ये सबमिशन थ्रू एन एफिडेविट करने वाले हैं, कंसोलिडेटेड फॉर द ग्रुप?
जी or we provide individual choices? नहीं consolidated Consolidated. उसमें Okay, perfect. I'm good with the option you picked. ओके तो चैट में कुछ मैसेज हैं, मैं जस्ट उन्हें पढ़ लेता हूं। Who will be accountable for money we will deposit now? Ultimately Supreme Court. So ये तो क्वेश्चन ही बेकार है, इसमें कोई पूछना ही नहीं है। If we know that refund is not their option as of now or without any interest, then why we are putting refund as first priority? ये छोड़िए। No project near completion has enough unit left. अजय जी, that Mandy's question is very much relevant. अगर उनका कहना बिल्कुल सही है, अगर हमें पता ही है कि रिफंड पॉसिबिलिटी है ही नहीं, लास्ट प्रायोरिटी है, तो हम उसके पीछे फिर क्यों भाग रहे हैं? नहीं, हम भाग नहीं रहे सर, हमने तो अपना ऑप्शन दिया है। ठीक है। और वो देखिए, दो चीजें होती हैं सर, कोर्ट ने नहीं बोला, लेकिन उसने विजन लिया है, क्योंकि जब वो वहां बैठता है वो बंदा, इसी बात की तो हमने उसको इतना पैसा दिया है। वो कह रहा है कि अजय हमने यूनिटेक में, सॉरी आम्रपाली में 28,000 बायर हैं, आपके यहाँ 14,000 बायर हैं। जब उन्होंने 28,000 बायर को नहीं सुना कोर्ट ने, तो आपको क्यों सुने? तो उसका पॉइंट मुझे वैलिड लगा। सिर्फ आम्रपाली में प्रॉफिट ये रहा कि आम्रपाली में पैसा ज्यादा आ गया उनके पास, करीब 4,500 करोड़ आया था। यदि आप देखेंगे, आपका आए नहीं बहुत दिनों से, इधर 11,000 फ्लैट बन रहे हैं सर नोएडा एक्सटेंशन में। गोर वाला बना रहा है वो मतलब सिर्फ कंस्ट्रक्शन करके बाहर हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि वो तो बना करके हैंड ओवर दे करके जाएंगे। कोर्ट के मूड में तो ये है। And just to add, not sure whether anyone has read the news today, this GIP area, they are also selling it off just to collect more money. बस तो GIP जो मॉल है नोएडा में, वो सेल आउट हो रहा है, क्योंकि ये यूनिटेक का इसमें वो था बहुत बड़ा स्टेक, राइट? हाँ, तो वो बैंक ऑफ बड़ौदा का वापस करने के लिए उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है सर, उसे छोड़ दीजिए उसको सर। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि सारी रिकवरी उनकी एक एक प्रॉपर्टी बेच के की जा रही है। रिकवरी होगी सर। हाँ, अब उसमें कैसे होगी, क्या होगी, हम उसमें नहीं कह सकते बॉस। अजय जी, सुनील विट्ठल साहब का जवाब एक ये भी है, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन पेविलियन। सो पेविलियन में उन्होंने कहा कि जब सारे प्लॉट बन जाएंगे और बिक जाएंगे, तभी जिनको रिफंड है हम रिफंड दे पाएंगे, उससे पहले रिफंड नहीं होगा। देखिए सर, पेविलियन में उन्होंने क्या बोला वो मुझे नहीं लगता है कि उसमें जजेस उसमें एग्रीमेंट में होंगे। लेकिन हाँ, मैं ये आपको बता दूं कि जितना उन्होंने कन्विंस कर लिया है मैनेजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को कि रिफंड इज नॉट द फर्स्ट प्रायोरिटी, एब्सोल्युटली, बस इतना उन्होंने कन्विंस कर लिया है कि साहब रिफंड आप देंगे तो सारा काम हमारा स्टक हो जाएगा, तो आप इसको तो बाद में रखिए, पहले पैसा मंगा लीजिए, हम बना देंगे। तो वो क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे, हम तो अभी भी कहते हैं कि भाई साहब आप हमारा ही प्रोजेक्ट बना दो। लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि अगेन दे आर सेइंग दैट कि भाई ये तो थर्ड प्रायोरिटी पे आएगा हमारा प्रोजेक्ट, यदि आता है तो बनाते हैं तो। और रीजन इसका ये भी है कि जो हमारे प्रोजेक्ट को बनाने की जो कॉस्ट है और जितनी रिकवरी है, उसमें बहुत ह्यूज डिफरेंस है बॉस। यदि आपने टेंडर पढ़े हो, टेंडर भी आए हैं ग्रुप पे, टेंडर आपने पढ़े हो, तो 117 में हमारा यूनिवर्ल्ड का और एग्जिट क्या है उसकी, तो मैं स्पेलिंग भी नहीं बोल पाता, एक्विजिट, जो 3 प्रोजेक्ट हैं उनको बनाने का टोटल टेंडर 950 करोड़ रुपए का छूटा है, मतलब इन्होंने डाला है 950 करोड़। और जबकि वो पेविलियन में ही वाज सेइंग कि दे नीड 504 करोड़, जिसमें 340 हमने देना है और 168 दे विल जनरेट फॉर बाय सेलिंग द प्रॉपर्टी। सो वो 504 से 950 का तो इनका पहले डिफरेंस आ गया। 950 का तो टेंडर डाला है। This is in works right now. I don't think so we can conclusively close this point right now. वो भी चलती रहेगी, ये बहुत नेगोशिएशन चलेंगी इनकी, बट मैं वो बता रहा हूँ आपको जो आप सही कह रहे हैं ना मनीष, कि उसमें क्या है कि 950 का तो उन्होंने टेंडर डाला है बॉस। अब 950 पे कोई 949 पे उठाएगा, 930 पे, मुझे नहीं लगता 950 का टेंडर कुछ 600 पे उठाएगा। ठीक है, करेक्ट। तो 950 करोड़ का टेंडर इन्होंने डाला है, जबकि रिकवरी यदि आप इसी में जो मैंने प्लान भेजा है, रिकवरी सारी मिलाकर के रिकवरी हमारी करीब 200 करोड़ की है, यदि सब लोग पैसा दे देंगे तो।
मतलब यदि हमसे बचा हुआ पैसा ले लिया जाए तो जितनी सेलिंग हुई है, जो बच रहा है वो 200 सवा 200 करोड़ है। ये कहना बहुत आसान है दोस्त कि वो 2 टावर फालतू बना देंगे और उसको बेच के पैसा निकाल लेंगे। अरे बिकेगा कहाँ, कौन खरीदेगा? एग्जिस्टिंग वाले भी नहीं रहना चाहते। एग्जिस्टिंग वाले रहना नहीं चाहते, नया कौन खरीदेगा? हम तो उस पर कंटिन्यूअसली हैं कि भैया हमारा पैसा दे दो आप। लेकिन अब जो वो कह रहे हैं कि भैया ये हमारी लास्ट प्रायोरिटी है, तो फिर तो ऑप्शन कुछ देखना होगा ना। तो दूसरा हमने बोला कि आप हमारे प्रोजेक्ट को प्रायोरिटाइज कर दो, आप बनाओ, हम रहेंगे। उसमें जो पैसा बचा हुआ है हमें देना होगा, हम देंगे, हर क्वार्टरली उसकी किस्त देंगे। हाँ, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यदि ये टेंडर छोड़ते हैं, क्योंकि ये भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट यदि टेंडर छोड़ेगी तो बन ही जाएगा। द बेस्ट एग्जांपल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं यहाँ रह रहा हूँ। बेस्ट एग्जांपल हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें मैं रह रहा हूँ, उसका टेंडर छोड़ा, 9.5 करोड़ रुपए का टेंडर छूटा इसमें, ठीक है। जो आया वो राधे बिल्डर करके कंपनी है, जो एनबीसीसी का अप्रूव्ड वेंडर है, वो आया, उससे बना ही नहीं, पूरा काम नहीं हुआ, वो भी भाग गया है, वो आधे अधूरे में है अभी भी। तो आप वो भी देखिए ना। हाँ ठीक है, यदि कोर्ट कह रही है 36 महीने में होगा, पेनल्टी लगा लेंगे, ये कर लेंगे, तो हमें तो ये है ना, कुछ तो मूवमेंट हो ना, बिल्कुल जीरो तो ना रहे ना। वो प्रोजेक्ट बिल्कुल जीरो है हमारा अभी आज की डेट में। तो भाई साहब कोर्ट क्या है वैसे कैसे भी अजय जी मैं एक चीज बस प्रतीक बोल रहा हूँ, ऐसे भी ये तो हमें मानना पड़ेगा ना कि कोर्ट ने ऑलरेडी एक जगह मैंने कहीं पे पढ़ा था दैट द कोर्ट हैज मेंशन्ड दैट कॉम्प्रोमाइज सबको करना पड़ेगा, वेदर इट इज द बायर, वेदर इट इज द अथॉरिटी। मैंने आपको बोल दिया भाई साहब, जो मैसेज में भी उनके उसमें भी आया, कोर्ट ऑर्डर में भी, और न्यूज में भी है, न्यूज भी आप ढूंढ लीजिए, उसमें लिखा है। जब डाउटी ने बोला था तो उसने बोल दिया था सिंपल, जज ने, डोंट एक्सपेक्ट लस्सी एंड मलाई बोथ, जो मिल रहा है उसको ले लो, जो हम दे देंगे रख लो। जी दैट्स व्हाट इज नॉट यूजफुल। हाँ ये पक्का है कि यदि ये प्रोजेक्ट बनता है तो आपसे कोई भी एक्सटेंडेड अमाउंट नहीं लिया जाएगा, ये श्योर है, क्योंकि हमने आम्रपाली में देख लिया। अभी जैसे सीआर ने सजेस्ट किया था जी 200 रुपए इनसे ले लो लोगों से, तो कोर्ट ने मना कर दिया कि कोई एक्स्ट्रा नहीं लेना। एक्सटेंडेड अमाउंट का क्या मतलब है एग्जैक्टली? कोई एक्स्ट्रा पैसा, वो बोले कि हमारी कॉस्ट बढ़ गई बनाने की, तो 3700 रुपए पे बुक हुआ है, नहीं इनसे 300 रुपए और एक्स्ट्रा लेंगे हम, वो नहीं मानेगी कोर्ट। ओके ओके। और ऐसे हम यूनिहोम में जाते हैं, वहां पे भी ये रहेगा, जो उस टाइम का प्राइस है उसी पे ले लो। उसी ओके। पर अजय जी एक चीज है, अगर आज उस टाइम मान लीजिए 4000 था थ्योरेटिकली लेटर से पर स्क्वायर फुट, आज वो टेंडर जो आप कह रहे हो मान लीजिए 4000 की जगह वो 5000 पे जाता है, तो बनेगा नहीं ना। फिर तो 1000 का गैप कहाँ से आएगा? वो मुझे नहीं पता साहब, मैं तो नहीं दे रहा वो 1000 रुपए। नहीं वही तो मेरा क्वेश्चन देखिए, आई एम जस्ट क्योंकि उस टाइम जो रेट था आज के रेट में और उस रेट में 10 साल हो गए सर, 11 साल हमें उसमें स्कीम में गए हुए, तो उसमें ऑब्वियसली उस टाइम 4000 का अगर रेट था हमसे, आज हो सकता है वो 5000। बॉस जो आप सोच रहे हो ना, इस सवाल का जवाब हम ऑलरेडी दे चुके हैं, यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि टेंडर 950 करोड़ का छोड़ा गया, रिकवरी 200 करोड़ है, तो सवाल सबसे बड़ा है कि 700 कौन देगा। बस वही चक्कर है। ठीक है, ओके ठीक। तो आपके सवाल का वही जवाब था। अब उसको ठीक है ठीक है ओके। वो 700 का डिफरेंस है। यदि आप देखोगे उस 236 पेज के प्लान को, हमारी सबकी मिला के 117 सेक्टर 117 की सारी रिकवरी 200 के आसपास भी रही जी। टेंडर ही इन्होंने 950 का छोड़ा है। टेंडर भी मेरे पास पता नहीं पड़ा होगा यार, वो वो फिजिबल ही नहीं, फिर बन ही नहीं पाएगा वो, क्योंकि उतना गैप, ना तो कोई नया बायर आएगा घुसेगा उस स्कीम में, और फिर वो पूरा बन ही नहीं पाएगा। फिर वो आई डोंट नो क्या होगा उसका, और पैसा फंस जाएगा या क्या हो जाएगा हमारा। ठीक है सर, और कुछ लास्ट? अजय जस्ट क्विक अपडेट फॉर एवरीबॉडी, जिसने भी किसी ने पहले वो फॉर्म भरा था, मैंने वो सारा डेटा इरेज कर दिया डेटाबेस में से, सो एवरीबॉडी विल हैव टू फिल दैट फॉर्म अफ्रेश। जी अजय, वन लास्ट क्वेश्चन, जैसे यूनी होम्स में आप कह रहे हैं 1100 स्क्वायर फीट इज द मैक्सिमम वो एरिया, तो सपोज किसी ने रेजिडेंसीज में ऑलमोस्ट 90-100% दे दिया, तो वो उसमें जाएगा, तो फिर तो उसको रिफंड नहीं मिलेगा। बट सपोज किसी ने 30-35 lakhs दिया है इसमें, बट देन
he switches to uni homes or in case it get approved, तब तो पूरा ही amount adjust होगा उसमें, right? तो सारा ही होगा ना बिल्कुल बस। पूरा एडजस्ट होगा। Okay, got it. Thank you. वो तो पूरा होगा ना बस, वापसी की उम्मीद मत करो ज्यादा से नहीं, ज्यादा। मुझे आप ये लगा कह सकते हो कहीं रेट वगैरह के बेस पे तो नहीं करेंगे कि उससे but हाँ, got वो it, got it. देखो लेकिन उसका कोई उसका प्रॉमिस नहीं है बस। हाँ, मतलब once in case it gets approved. मतलब नहीं, अभी तो ये नहीं। देखो ना, कोर्ट अप्रूव करे कोई प्लान जो हम ऑप्शन दे रहे हैं, पहले तो वो देखो कि वो क्या अप्रूव करता है, क्या डिसीजन देता है, क्योंकि एज अजय मेंशन इट इज नॉट गोइंग टू हैपन इन वन हियरिंग, ये 2-3 हियरिंग तो इतनी निकल जाएंगी, Agreed. इतने में तो पता नहीं कितनी बार रिसर्च हो जाएगी कोर्ट की। अजय जी, मनीष जी, अंकुल इधर एक क्वेश्चन था। अगर हम लोग को लगता है कि रिफंड पहली बात तो मिलेगा नहीं, अगर मिलेगा तो उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो हमारा जो पैसा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू या तो ऑप्शन 2 में है, ऑप्शन 3 में है, तो हम लोग उसकी तरफ क्यों ना ध्यान दें, रादर देन रिफंड करते ना, हमको पता है तो वो होना आपको है नहीं। रोका किसने दोस्त? नहीं सर, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं ऑब्वियसली मैं ग्रुप के साथ ही खड़ा हूँ, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम लोग एज अ ग्रुप फिर ऑप्शन 2-3 को प्रायोरिटी ना देके ऑप्शन 1 को फिर भी प्रायोरिटी दे रहे हैं अपने एफिडेविट में। भाई साहब, वो हम इसलिए लिख रहे हैं कि हम तो कह रहे हैं कि हमारा पैसा दे विद इंटरेस्ट। जब आप रिफंड मांग रहे हैं तो रिफंड का तो आपका जो क्लेम है इंटरेस्ट के साथ जमा है ना, तो हम अपना क्लेम क्यों छोड़ें? प्रेशर हम अपना क्लेम क्यों छोड़ें? ओके, जो हमारा प्लान सबमिट हुआ है, जो हमारी कैलकुलेशन सबमिट हुई है, वो विद इंटरेस्ट हुई है। ठीक है। क्योंकि मेरे पास कम से कम पहले जो 2 बैच हैं, जो 90 आई थिंक कितने थे मनीष, 80 या 82 लोगों के पास जो डिग्री है वो 10% इंटरेस्ट की है जी। करेक्ट। थर्ड बैच के पास भी 10% सिंपल इंटरेस्ट की। हाँ, 10% की डिग्री है। करेक्ट। मैं छोड़ू क्यों, मेरा सवाल ये है। वो मुझे पता है नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें 2-3 चीजें और भी थी। सॉरी अजय जी, उसमें 2-3 चीजें और भी थी। 25,000 का लिटिगेशन फी भी था साथ में। जो भी है, तो मैं अपना इंटरेस्ट छोड़ू क्यों बॉस? करेक्ट। मैं तो बोल रहा हूँ कि भाई मेरा दे दे। तुम कह रहे हो मैं नहीं दे रहा तो चल भाई दूसरी सुन ले। नहीं, मैं दूसरी भी नहीं सुन रहा तो अब तीसरी सुन ले, और तीसरी भी नहीं सुन रहा तो गोली मार दे हमें चौथा। अरे अजय जी, क्या हम चौथा भी नहीं रख सकते क्या? 3 तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं कि जब तक हमारे को पोजेशन नहीं तब तक पैसा नहीं। एक हाथ से वो नहीं हो पाएगा मैडी, वो नहीं हो पाएगा मैडी। ओके, क्योंकि वो बना ही नहीं पाएंगे उस केस में ना, वो नहीं सुनेंगे मैडी। हाँ ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन के लिए ही हमको करना है, जो भी कुछ करना है वो अगर डिसाइड हो जाए तो बेस्ट है कि किसमें जाना है। ग्रुप की मीटिंग का भी नतीजा बढ़िया निकल जाएगा। फर्स्ट और सेकंड तो हम क्लियर कट हैं ही। देखो, फर्स्ट और सेकंड आप क्लियर हैं, सेकंड में आप देख लीजिए, तो थर्ड में आप देख लीजिए। यदि थर्ड में बस वही है, आप सजेशन अपने भर लीजिए, कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन चूंकि मैक्सिमम नंबर अजय, मेरे ख्याल से अजय एक काम करते हैं लोग, लेट अस गिव पीपल टुमारोज टाइम टू फिल इन देयर ऑप्शंस। उसके बाद उसको कंपाइल करके हम देखते हैं, लेट अस टेक अ सॉर्ट ऑफ अ काउंट कि क्या क्या मैक्सिमम चॉइसेस हैं। Then you could probably go with the top 3 choices or something like that. अगर कलेक्टिवली एक बार अपना ग्रुप तो है ही, उस पे बता देंगे कि इतने ये हैं, और कुछ मैं भी होमवर्क करके देख लूंगा कि क्या इनिशियल कॉस्ट थी उस समय 2012 में कि इस प्रोजेक्ट की इतनी थी, इस प्रोजेक्ट की इतनी थी। फिर एक कॉमन डिसाइड हो जाएगा ग्रुप पे कि भाई ये भर दो, इसमें ज्यादा बेनिफिट है तो वो ही भर देंगे। अगर मान लो जैसे किसी ने ग्रुप में लिखा है, मैं साथ में वो भी देख रहा हूँ, शायद पारिजात ने लिखा है the Willow Noida and Uni Homes Noida is an option, right? तो यूनी होम्स यस हमारे बजट में आता है बॉस। विलो हमारे बजट में, चूंकि अगेन इसमें प्राइसिंग आपको देनी होगी पीरियड, क्योंकि विलो का मुझे पता है, विलो की जो बुकिंग हुई थी, तो विलो की बुकिंग शायद 4800 कुछ में हुई थी। लेकिन जैसे मैडी बोल रहा है, थोड़ी रिसर्च ये भी करेगा, थोड़ी मैं भी करूंगा, क्योंकि मुझे वर्किंग डे में फुर्सत नहीं मिली। मैंने सुनील सर को मतलब प्रॉमिस किया था कि मैं रिसर्च करके बताऊंगा कि इस प्रोजेक्ट का क्या प्राइसिंग था, लेकिन नहीं निकाल पाए हम टाइम। जी, मैंने तो इसको ये देख करके लिखा था कि किस प्रोजेक्ट में सबसे कम पैसों में बनने की संभावना है। नहीं, तो मैं वही आपको बता रहा हूँ कि विलो का मैं आपके माइंड सेट के लिए बता रहा हूँ कि जहां तक मुझे नॉलेज है, क्योंकि ये मुझे अच्छे से याद है, ये प्रोजेक्ट है शायद 4800 पे ये बुक हुआ था। तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा आप नहीं दे सकते सजेशन, हम दे रहे हैं उनको, लेकिन कीप इन योर माइंड कि जैसे यदि मैं लेता हूँ, मेरा सुनील सर का, मनीष का, शायद हम सबका 3600 या 3700 पे बुक हुआ है रेजिडेंसीज में,
आई थिंक तो सभी का लगभग करीब करीब उतने में ही था, लगभग इतने में ही है। हाँ ये डिपेंड मेरा भी भी सब तो करेगा सही है। कि कब ये बुकिंग हुई है। जितना लेट हुई होंगी उतना ज्यादा अमाउंट होगा। तो आई थिंक जितना पुराना प्रोजेक्ट होगा उसका बुकिंग रेट उतना कम होगा आई थिंक। वो मतलब मुझे पता नहीं बॉस, वो तो देखो एनालिसिस जो भी होगा उनकी टीम अपने आप करेगी बॉस। तो हम तो सिर्फ एक आइडिया ले सकते हैं। अपना रेजिडेंसी 3748 है और यूनिहोम्स 3 3500-3600 के रेट में है। हाँ तो वो मेरे पास ब्रोशर मतलब मुझे मिल जाएगा, मेरे पास होगा रेट्स। आप मैं कल वर्कआउट पुराने करके पुराने दे दूंगा। ब्रोशर्स कहीं से डिग आउट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा, मैं निकालने की कोशिश करूंगा। इनके मेरा वेबसाइट्स पे ही है। मतलब मैं करूंगा कोशिश, मैं अजय जी, मैं निकालने की। वेबसाइट पे है। मोस्टली प्रोजेक्ट्स के साइट्स पे हैं, ऑलरेडी यूनिटेक है। वेबसाइट पे ही है। अजय जी। जी अजय जी, मैं अनूप बोल रहा हूँ। जी। अब जैसे अभी एक सज्जन ने पहले भी कहा था कि बैलेंस जो है हम फाइनल में देंगे कंप्लीशन के बाद। तो जब हम ऑप्शन बाकी ऑप्शन दे रहे हैं कि जिन सज्जन ने कहा था कि हम फाइनल के बाद देंगे, उन सज्जन को जवाब दे दिया था, तो आपको भी नहीं वही जवाब दे दो। नहीं, ऑप्शन देने में क्या प्रॉब्लम? जब हम ऑप्शन बाकी दे रहे हैं, बाकी का पता कि कोर्ट नहीं मानेगा तो इसको भी नहीं मानेगा, ठीक है, ये भी ऑप्शन दिया जा सकता है। ये ऑप्शन मानेगा नहीं मानेगा तो कोर्ट को डिसाइड करना है। नहीं बॉस, उसमें वो ऑलरेडी आपको प्लान दे चुके हैं, मानेगा या मानेगा नहीं, वो प्लान दे चुके हैं कि पेमेंट प्लान में तो शिफ्ट का भी दिया है कि प्लान शिफ्ट कर सकते हैं आप। ऑप्शन शिफ्ट का भी ऑप्शन नहीं दिया उन्होंने। शिफ्ट का क्यों नहीं दिया उन्होंने? शिफ्ट का क्यों नहीं दिया उन्होंने? शिफ्ट का ऑप्शन कहाँ दिया उसमें? शिफ्ट का ऑप्शन उसने खाली कहा कि आपको ये आपने वो डॉक्यूमेंट पढ़ा जो मैंने अभी भेजा 236 पेज नहीं, का? अभी नहीं पढ़ा। तो फिर अजय जी, वन लास्ट क्वेश्चन कुलदीप राजदान। हाँ जी कुलदीप, आपको तो मैटर निपट गया, आप कहीं को परेशान हो गए? नहीं, मैं मैटर कहाँ से निपट गया? आप तो खुद ही कह रहे हैं रिफंड में दिक्कतें हैं। वैसे बोल रहे। मेरा एक सीधा सा क्वेश्चन है, एज रेजिडेंसेस फैमिली ऑल ऑफ अस 150-200 आदमी जो भी हम 100-125 व्हाटएवर, इफ वी गेट स्टबन एंड गिव ओनली वन ऑप्शन दैट इज रिफंड एज एंटायर फैमिली, सारे रिफंड की बात करते हैं, वी डोंट गिव एनी अदर ऑप्शन, व्हाट वुड हैपन? कुछ नहीं कह सकते बॉस, क्या होगा? सर हमें छोड़ के 300 लोग और भी हैं सर। बस जो बार बार कहा जा रहा है कि 300 का तो हमें नहीं पता ना, ये प्रोजेक्ट में जब आप पूरे प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो पूरे प्रोजेक्ट में तो उन 434 को जोड़ना पड़ेगा ना। करेक्ट। हम तो वैसे ही माइनॉरिटी हैं, हम तो 25% है कुल। तो वही ना, व्हाई डोंट वी डिसाइड टू गो इन दिस वे? क्या होगा ये वाली बात? इसलिए तो हम बोल रहे हैं ना कि हम तो रिफंड पे अड़ रहे हैं, लेकिन हम एक ऑप्शन के साथ ही नहीं अड़े रहे। रिफंड पे तो हम अभी भी हैं, हमारा तो डाटा हमने तो बदला ही नहीं कहीं भी। पहले हम रिफंड ही ऑप्शन देते हैं खाली, वी डोंट गिव एनी अदर ऑप्शन। भैया एफिडेविट में एक बार एफिडेविट नहीं लगेंगे ना, ऐसा नहीं हो सकता। आई थिंक सुप्रीम कोर्ट इज काइंड ऑफ प्लेइंग अ प्रेशर गेम विद ऑल ऑफ अस। मुझे इतना पता नहीं, ऐसा मेरा मानना है। बाकी तो आप लोग सारे समझदार हैं, यू कैन आल्सो डिसाइड। मेरा तो यही मानना है कि इट इज अ काइंड ऑफ अ प्रेशर गेम व्हिच इज बीइंग थ्रस्टेड ऑन अस। वो तो देखो, चाहे जो मान लो आप कि वो प्रेशर गेम है, को भी है। आप एक हम सबमिट कर रहे हैं कि भाई साहब मैं ये चाहता हूँ, माने ना माने वो उनका फाइनल डिसीजन है। हम सुप्रीम कोर्ट ये नहीं बोल सकते हैं भाई वी हैव बीन विक्टिमाइज्ड बाय एवरी एजेंसी अंटिल नाउ। तो हमारे अब तो बोलने का एक तरीका यही रह गया कुलदीप, एक ही तरीका रह गया है कि माथे पे खुदवा लेते हैं। मतलब यदि 12 साल के कोर्ट के केस के बाद भी हम ये बता रहे हैं कि हम विक्टिमाइज हैं। करेक्ट, मैं कह रहा हूं कोर्ट को सुनना चाहिए ना, फिर तभी तो मैं कह रहा हूं कोर्ट को सुनना चाहिए ना। हम ये क्यों नहीं एफिडेविट में देते हैं साथ में भाई? आई थिंक दिस इज अ यूजलेस डिस्कशन कुलदीप। वो सुनना चाहिए, वो आप वहां जाकर के सुना सकते हैं बस। कोर्ट कहां से पैसे देगा आपको? हाँ नहीं, वो आप वहां सुनाइए कोर्ट को जाकर के, उसको बोलिए एक दिन जज को पकड़ के, भाई साहब सुनो, मैं कह रहा हूं एक रिक्वेस्ट एफिडेविट दे रहे हैं तो व्हाई डोंट वी गिव दिस काइंड ऑफ एन एफिडेविट? ठीक है सर, आगे एंड ओके गाइस, तो इट्स ऑलरेडी 10। राइट, थैंक्स। सुनील सर, वो आपने अपडेट कर दिया? मैंने वो क्लियर कर दिया है। नाउ एवरीबॉडी हैज टू गिव अ फ्रेश ऑप्शन। मैं रिकॉर्डिंग कंप्लीट करके आई विल पुट द रिकॉर्डिंग, आई विल सी द साइज ऑफ द रिकॉर्डिंग if I can put it on the group, otherwise I'll have to upload it on one of the drives somewhere and then give the link. ठीक है सर। राइट सुनील जी, थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन कब तक देनी है सर? परसों तक आपने कहा, मंडे तक? सर मंडे को हम इसको कंसोलिडेट करेंगे, क्योंकि ट्यूसडे को हमें जाकर के उसको देना है। सर कल शाम कोशिश करें आप संडे तक कल दे दें तो बेटर है। हाँ
जी थोड़ा सा हमें भी टाइम मिल जाएगा क्योंकि मंडे को Thank you, वर्किंग अजय डे जी। होता है हमारा। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू अजय जी, थैंक यू मनीष जी, थैंक यू सुनील जी। Okay. Okay, Thank you. thank you. Thank you. सुनील जी, Thank थैंक यू you. अजय जी। Thanks. Thank Thanks. you. Thanks.